Hello students, today in this video we are going to start a new chapter, The Chocolate Room, from our English literature book. Students, it's a very interesting chapter and in this we are going to see whole waterfall of Chocolate Room, and yes, you all are going to enjoy this chapter a lot. So let's get started. As we all can see an image of a man, and he is Mr. Willy Wonka, and he is the owner of this chocolate factory. Mr. Willy Wonka invites 5 children for a visit to his chocolate factory. एक बार मिस्टर विली वोंका इनवाइट करते हैं 5 बच्चों को कि वो उनकी चॉकलेट फैक्ट्री में विजिट करें. Among them, Charlie Bucket is a poor little boy. He accompanied by his grandfather. और जो उन 5 बच्चों में से एक बच्चा होता है जिसका नाम है चार्ली बकेट, वो एक पुअर लिटिल बॉय है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ विज़िट करता है. They had strange experiences. उनके साथ बहुत सी अनयूजुअल और बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पे. In this extract, Mr. Wonka shows them the chocolate room. फिर क्या होता है, जो मिस्टर वोंका होते हैं वो उन्हें चॉकलेट रूम दिखाते हैं. Mr. Wonka took out the bunch of keys and said, "This is the nerve center of the whole factory, the heart of whole business." फिर मिस्टर वोंका बताते हैं कि जो कीज़ उन्होंने निकाली होती है अपने पॉकेट से और वो बोलते हैं कि this is the nerve center of this whole factory. Now here the meaning of nerve center is the most important part which controls everything else, and it is the heart of whole business. There were 5 children and 4 adults who were entering the room and said, "Oh my God, this is so beautiful and amazing." They were looking down on a lovely valley. वहाँ पर छोटे 5 बच्चे होते हैं और 4 ग्रोन अप लोग होते हैं जो एंटर करते हैं रूम में. जैसे ही वो रूम को एंटर करते हैं वो देखते हैं कि कितना सुंदर और कितना प्यारा सीन है उनके सामने. They were seeing the lovely valley, and there were green meadows, and along with the bottom of it there was flowed a great brown river. And yes, वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन कलर के मीडोज बने हुए हैं, एंड उसके साथ ही साथ वहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक ब्राउन कलर की रिवर है जो फ्लो कर रही है. Below the waterfall, a mass of enormous glass pipes were dangling down into the river. There must have been a dozen of them, at least, and they were sucking up brownish muddy water from the river. ये नज़ारा था. वहाँ पर हर तरीके का एकदम enormous सीन मिला उन्हें देखने के लिए, एंड वहाँ पे कुछ पाइप्स थे, एंड दोज वर वेरी बिग एंड एनॉर्मस पाइप. 12 पाइप्स वर देयर. वहाँ पे करीब 12 पाइप्स थे, एंड दे ऑल वर सकिंग अप द ब्राउनिश मडी वाटर. और वो जो चॉकलेट वाटर था उसको सक कर रहे थे, एंड इट वाज गोइंग upward in a upward direction and carrying it away. It is made up of a glass and it was transparent in the look. Every drop of that river is hot, melted chocolate of finest quality. और जितनी भी ड्रॉप्स थी रिवर में वो एकदम गर्म थी और वो एक melted chocolate थी, and the finest quality means the best quality of chocolate was there. The waterfall is the most important because it mixes the chocolate, it crunches it up, it pounds it, and it beats it. It makes it light and frothy.
जो यहाँ पे वाटरफॉल था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो पूरे चॉकलेट को मिक्स कर रहा था एंड इट वॉज मेकिंग इट लाइट एंड फ्रॉदी. नाउ हेयर द फ्रॉदी मीनिंग द क्रीमी, समथिंग वेरी bubbly in taste and creamy in taste, and it was making it very light. The trees, bushes were very lovely, and of course they all are eatable, all made up of something different and delicious. और यहाँ पे जितने भी पेड़ वगैरह थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, एंड ऑफ कोर्स वो सभी की सभी चीज़ें हम खा सकते थे, एंड इट वाज मेकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट. वो कुछ अलग बना रहा था एंड इट वाज वेरी डिलीशियस इन टेस्ट, मतलब बहुत ही टेस्टी था टेस्ट में. मिस्टर वोंका said the grass you are seeing is made of a new kind of soft minty sugar that I have invented. I call it smudge, and he asked them to taste it. Everyone picked one blade of grass except his gloop, who took a big handful. मिस्टर वोंका बोलते हैं कि आप सभी लोग जो ये ग्रास देख रहे हैं वो एक बहुत ही सॉफ्ट और मिंटी शुगर, बहुत ही मीठी सी चीज़ से बनी है, और ये मैंने इन्वेंट की है अभी कुछ टाइम पहले ही, एंड इसको मैं स्मज बोलता हूँ. आई कॉल्ड इट स्मज एंड ही आस्क्ड देम टू टेस्ट इट. और वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करें. तो सभी लोग नीचे झुकते हैं और उस ब्लेड ऑफ ग्रास को टेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट अगस्टस ग्लूप. जो एक छोटा बच्चा था अगस्टस ग्लूप नाम का, वो क्या करता है, उसके अलावा सभी लोग झुककर थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, बट वो क्या करता है एक मुट्ठी भर के उसको निकालता है एंड ही स्टार्टेड ईटिंग इट. Violet Beauregard, before tasting it, she took the piece of chewing gum named World Record Breaking and stuck it very carefully behind her ear. So यहाँ पे एक वायलेट ब्यूरग्रेड का क्या करती है, च्युइंगम का जो पीस होता है उसके पास, उसको निकालती है और उसको बहुत ही ध्यान से अपने ईयर के जस्ट पीछे उसको स्टक कर देती है, चिपका देती है. एंड जो च्युइंगम का नाम है उसका नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग. इट्स अ नेम ऑफ अ च्युइंगम, ऑफ अ च्युइंगम. ओके, सो it's a very good quality of chewing gum they are mentioning here. Charlie asked to his grandpa Joy, hasn't it got a wonderful taste? वो अपनी ग्रैंडपा को बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिला है? I could eat the whole field, said grandpa Joy. फिर वो बोलता है कि मैं चाहता अगर मेरे बस में होता तो मैंने पूरा का पूरा जो फील्ड है वो खा लिया होता. I could go around on all four like a cow, eat every blade of grass in the field. और जितनी भी फील्ड है उसमें जितनी भी ग्रास है उस फील्ड में वो सारी की सारी मैं खा लेता, जैसे कि एक काऊ खा लेती है पूरी ग्रास को, उसी तरीके से. Now in the next scene, as you all can see in the image that all are seeing somewhere, and here Varuka Salt, she is a little girl and who is pointing to the other side, who is pointing frantically to the other side of the river. Look, he is moving. Now here the meaning of frantically is थोड़ी डरी हुई और घबराई हुई है वो, और वो एक तरफ इशारा करती है, एक तरफ पॉइंट करके अपनी फिंगर को, दैट सी समवेयर इज़ देयर एंड ही इज़ मूविंग. ओह, इट्स वॉकिंग, इट्स अ लिटिल पर्सन. वो बोलती है कि वो चल रहा है, वो मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा कोई इंसान है. Everybody stopped picking buttercups and stared
अक्रॉस द रिवर। और फिर सभी लोग जो बटर कप्स ले रहे थे, उठा के खा रहे थे, वो रोक देते हैं उस टाइम के लिए, और वो अचानक से फिर क्या करते हैं, उसकी तरफ स्टेयर करने लग जाते हैं, मतलब देखने लग जाते हैं रिवर की ओर, जिस तरफ जो वेरुका सॉल्ट है वो पॉइंट कर रही होती है। एंड एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग एट वंस, और सभी लोग अचानक से चिल्लाने लग जाते हैं। देयर इज़ 2 ऑफ दैम, वो बोलते हैं मुझे लगता है कि वहाँ पे 2 हैं। ओ गॉश देयर इज़, ओ माई गॉड, हाँ वहाँ पे हैं। देयर इज़ मोर देन 2, वो बोलते हैं कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी हैं। देयर इज़ 1 2 3 4 and 5, and everybody started counting 1 2 3 and 4 and 5। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है एंड, और हमारी स्टोरी इधर तक की थी। सो स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड द concept of this story, and you hope you all enjoyed this a lot. Thank you so much.